भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै द्विषावहै ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः हरिः हरिः ओम। ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। पंकज भाई, Pranam Swamiji. please start your summary. Pranams to all. Today's article is reactions to sadhana या साधना की प्रतिक्रियाएं. This is from the chapter 29 of the book Meditation and Spiritual Life. पंकज भाई, हाँ, प्रणाम स्वामी जी. फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा कट रहा है. ओके भाई. यस. Yes. So sadhana की प्रतिक्रियाएं या reactions to sadhana. As it is said that path to prosperity is full of obstacles, Swamiji has made it loud and clear that the same is more true in spiritual life as well. So spiritual life is not a bed of roses, but a real uphill task full of difficulties and sufferings, like it's a Shurasya Dhara or a razor's edge. In a way, it is a paradox that sadhak has decided to turn away from worldly life and its pleasures and taken a path of meditation and prayer in the hope of getting supreme peace and fulfillment. He has read about bliss of meditation, the joy of communication with God. At first, everything seems to go well, and he enjoys his japa, meditation, austerities. But then those sincere aspirants who start spending long hours of japa, prayer, and contemplation start facing various types of reactions, difficulties, and sufferings. Here is the nature of reactions or different types of pratikriyae that sadhak faces in his spiritual journey. It has been listed in Aparoksha Anubhuti by Shankaracharya that while practicing samadhi, there appears unavoidably many obstacles such as lack of inquiry, idleness, desire for sense pleasure, sleep, dullness, distraction, tasting of joy, and the sense of blankness. While in Yoga Sutras, Patanjali gives similar list of obstacles like disease, mental laziness, doubt, lack of enthusiasm, lethargy, clinging to sense enjoyments, false perceptions, non-attaining concentration, and falling away from the state when obtained are the obstructing distractions. Now, when we look at the different types of distractions, there are, apart from this, one may experience temporary glimpse of inner light, but one should not stop at it. What is essential is eternal bliss and light. One need to remove all the dirt lying hidden in the dark corners of mind. Many times sadhaks may feel dryness or void, difficulty in concentration. There may be vacillations and swinging between sublime and ridiculous. At times, there is mental or physiological disturbances and moral instability.
There may be character and conduct becomes unsteady. At times, nervous breakdown or greater weakening of all our powers and greater slavery to senses. Even there may be outer obstacles like reactions in the form of unfavorable reactions from your family, relatives, and friends will also grow. These obstacles are all created by ourselves only. They arise within us, and we should not point blaming others. So all these obstacles one has to pass through, but there is a solace that everyone who intensely and seriously follows spiritual path has to experience and pass through such difficulties, and there is a way forward. Swamiji has elaborately mentioned the various solutions, practices that one it puts into practice can make these obstacles a stepping stone for progress. But first, let's analyze why these reactions are और प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर उठती हैं. There are many reasons. We need to seriously and mercilessly introspect. As one starts meditating and trying to concentrate and control mind, old desires, old sanskars, old impure tendencies, and old memories lying in unconscious or subconscious mind now wants to find expressions on physical or conscious plane. This leads to long periods of serious unsettlement and terrible struggles with our desires and passions, which ultimately brings us down. But there are other reasons as well. Our careless, irregular, and irresponsible ways of living, like overeating, oversleeping, overwork, meaningless or untidy work, talking too much and nonsense, insufficient mental purity, living unethical life with moral indiscipline, becoming too overconfident and proud of our strength, but not realizing our weak points. At times, suppression of useful and noble aspirations, like denying normal and legitimate demands of human soul for love, compassion, and higher intellectual joys. At times, aspirant attempting too much, like unguided pranayam, various forms of severe austerities, deprive body of normal food, joy, rest, sleep. So, with all these reasons, there is another aspect where one tries to shift the center of consciousness, like before living at lower centers of eating, sleeping, sense of enjoyment at Muladhar, Swadhisthana or Manipur level, but now tries to stay at higher levels of heart and head. But one cannot hold on for long, and that leads to profound unsettlement of mind. So these are the reasons or causes of reactions. So now we move on to how we can move forward and what needs to be done. So first is connect your consciousness with divine consciousness.
center of our consciousness to be shifted from false ego to true self. Establish relationship with Ishtam, Isht, like object of our meditation. And we should feel the positive presence of Isht as something real by establishing and connecting necessary relationship with our Ishtam. It may be as Shant Bhav, Madhur Bhav, Dasya Bhav, Vatsalya Bhav, or Sakha Bhav. And this applies to all, like Bhaktas and Gnanis as well. We should not give up our efforts. Need to calmly, steadily, one-pointed, dogged meditation and japa coupled with strict fulfillment of ethical and cultural living to continue. As mentioned in Patanjali Yoga Sutra, Yama Niyama, Asan Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan and Samadhi, step by step to follow. Aspirant needs sympathetic treatment and sympathetic consideration. The sadhak should be treated very kindly and with great understanding and sympathetic consideration, as such reaction or unsettlement is not his fault, but it's the consequence of spiritual practice. One should not criticize, not to judge. We should be with the holy company and always be on guard during our association with the other people. One should have that positive attitude that such struggles, such difficulties or reactions and mistakes need to be welcome, need to learn the lesson from it, be stronger, and it gives opportunity to become purer like gold. The more intense our sadhana be, the greater will be such reactions, but shorter will be the duration of such adverse reactions if the sadhana becomes more and more intense. One needs to hold on to higher center of consciousness. Each one should discover its own center of consciousness or inner anchor, and that's the half battle one. When trouble arises or such reactions comes up, or temptations or evil inputs approach within, or when one gets kicks and blows from inside, go to that your center of consciousness or inner anchor and try to hold on it. Always think yourself as a soul, a self-illuminous entity separate from body and mind. What has been emphasized is undo our old or former bad actions and thoughts, evils to be eliminated step by step, and good to be restored and fostered. One should mercilessly introspect and avoid repetition of mistakes, becoming more humble and more dependent on divine. One should not stop at partial success or just by a glimpse of light. Much evil and tendencies and impurities are there to be controlled and finally need to be eliminated. The other solutions to face such spiritual struggles and reactions, Swamiji says that while introspecting, try to find out your weakest point and not the strongest. Just as strength of a chain depends on its weakest link. So try to find out your weakest link. Don't worry about
every slip or fall, but rise every time and start putting more efforts. Every fall should become a stepping stone and take you to higher, newer heights. Go on with spiritual practice regularly, steadily, without interruptions. One should resist inner impulse to stop sadhana, but insist on maintaining it continuously, even if one is in good mood or not. Offer prayer when unable to meditate in proper way. It gives inner solace. What it says that with prayer, if you move one step, he will come forward with 10 steps. Maintaining the attitude of witness also helps a lot, like a sakshi bhav or as a looking at the things as a spectator. If bad impulses or sanskars of subconscious or unconscious mind starts coming onto conscious plane or surface, detach ourselves from their entanglements or attachments. Really mercilessly introspective mind, and don't be hypocrite. Become fully aware of every thought that arises in mind and try to control it. Rise above sense enjoyment, temptations, sense life, develop aversion to all such senses, and rise above subtle unconscious thoughts coming to surface. Consider evil effects of bad thoughts, fill it with good thoughts, and dwell on the life of great saints. There is a whole list of the vratas, like good habits and systematic way of life, ethical and moral discipline life, regular studies, devotional music, social service, discharging duties of life and service to holy men. One should counter lower emotions through emotions, thoughts, and pleasures with good ones. Gradually advance based on individual physical and mental strength. One should have a healthy pride in calling devotees of God. It gives courage and strength to overcome one's desires and sense impulses. At times, we should continue to go to fellow aspirants, have a talk on some holy topics, and divert our mind. Don't brood over the past or falls or sleeps or having bad thoughts. Don't be afraid, but face them boldly. Like what Swamiji says, face with the brute of his story of facing the monkeys without fear. Never identify or get attached to your thoughts. Read and study something elevating, inspiring. Try to cultivate attitude of witness or sakshi bhav or as a spectator. When bad impulse thoughts or sanskars of subconscious or unconscious mind start coming to surface on conscious plane, detach, don't identify ourselves from their entanglements or attachment. Last, having what Swamiji has said, that one should have a strong faith in your potential divinity and a courage to manifest and attain it in this very life, and not merely understand it as a mental exercise. So Swamiji has given us great courage and has said that this world is, after all, nothing but a training out ground or a moral gymnasium.
No doubt it's not a pleasure garden, but there is an opportunity to attain and manifest divinity. And lastly, that Swamiji's prayer that भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों में ढक जाए, आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो, कुछ है वीर हृदय, तुम्हारी विजय अवश्यम भावी है। भले ही शीत से पहले ग्रीष्म आ गया, पर लहर तो दबाव से ही उबारता है, लहर का दबाव ही उसे उबारता है। धूप छांव का ये खेल चलने दो और अटल रहो, वीर बनो। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी हो गया ना? यस हाँ जी। ऐसा है कि ये कुछ लोगों ने आज क्वेश्चन भी किया है कि भाई निगेटिव निगेटिव क्यों, लेकिन ये आर्टिकल इतना अच्छा है, यानी रिएक्शन टू साधना, तो ये तो निगेटिव चीज है, लेकिन हमारे जीवन में साधना करने में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके में बीच में धीरे धीरे उन्होंने इतनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस साधनाएं बताई है। ये आर्टिकल मैं समझता हूँ कि सभी को बार बार इसको पढ़ना चाहिए और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो मेरे को दिखाई भी कि स्वामी जी इसको हमको पढ़ के इतना अच्छा लगा, और हम उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं मिले हमको। जो भी हो उसके बाद में क्वेश्चंस तो आए हैं और उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसको थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं रहे, उसको हमें जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, यहाँ पर कभी कभी लगा कि एक पार्टिसिपेंट ने एक पेज से 6 क्वेश्चंस निकाले, यानी 5 दिन तक कुछ नहीं, छठे दिन जो है जल्दी उसको पढ़ा कि अरे भाई प्रश्न भेजना है, और एक पेज में से 6 प्रश्न भेज दिए ना। ये तो उद्देश्य नहीं है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह है कि उसको हम 7 दिन तक पढ़ें, उसको अच्छी तरह इंटेलेक्चुअली समझने का प्रयत्न करें, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, कुछ सीखें। इसलिए उससे क्या होगा कि प्रश्न उठेंगे। देखिए, अगर आप साधना करेंगे तो डेफिनेटली प्रश्न उठेंगे, याद रखिए। आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं अवश्य आएंगी, और उसको जब हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो प्रश्न डेफिनेटली उठेंगे। अभी करेंगे, 10 साल बाद में प्रश्न उठेंगे, दूसरे प्रकार के प्रश्न उठेंगे। तो प्रश्न पूछना कुछ बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन में साधना करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैं पुनः बार बार कहने का प्रयत्न करूंगा। और ये जो किताब है हमने लिया है, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, तो ये एक एक्सेप्शनल किताब है। मैं हिंदी अनुवाद में मैंने ही किया है इसका किताब का, लेकिन जब मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है ये किताब, इतनी प्रैक्टिकल है। देखिए, कंप्लीट वर्क से स्वामी विवेकानंद हुआ, श्री रामकृष्ण वचनामृत हुआ, इटर्नल कंपेनियन स्वामी ब्रह्मानंद जी की टीचिंग्स हुई, और ये किताब, ये जो है ये साधक के बिल्कुल अंतरंग वस्तु हो जानी चाहिए। इस किताब को तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कभी न कभी रोज कुछ न कुछ थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो एनीवे, अभी और भी आर्टिकल हैं जो हम ले लेंगे इसके बाद में। अभी चलेगा, कुछ महीने तक और चलेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता उसके बाद हम जो देखना हो वो देखेंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। शिवानी, यू स्टार्ट। जी महाराज, प्रणाम। Maharaj, my first question is, how can we retain our faith on God in our tough times, or when we are facing difficulties in life? Because sometimes it becomes very difficult to have faith on God. So why do you want faith on God? जी, Why do you want faith on God? बिना फेथ के भी तो चलता है। जैनिज्म में बुद्धिज्म में तो भगवान है ही नहीं, और हम लोगों का भगवान कितना है। वो जैसे आया, तूफान आया था ना, ठाकुर कहानी सुनाते हैं, हे भगवान, हनुमान जी का तो हे भगवान, ये वायु देवता, इसको रोको, मत तोड़ो। ये जो है ये हनुमान जी की गढ़ कुटिया है।
फिर आने लगा नहीं नहीं ये राम जी की कुटिया है। फिर हवा आने लगा नहीं नहीं ये सीता जी की कुटिया है। उसके बाद सोचता गया ये कुटिया उसकी है, भगवान की कुटिया है, भगवान की कुटिया छोड़ दो। जब तूफान आया और कुटिया उड़ने लग गई तो क्या धक तारे की तेरे की चित्त कुटिया तेरी कुटिया। तो हमारा विश्वास जो है ना, उससे क्या होता है, कितना विश्वास है हमारा। हमारे विश्वास जो है वो अपने थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल सेटलमेंट रहे, साइकोलॉजिकली हम ब्रेक न हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा विश्वास है। लेकिन पर्सनली आई फील डोंट वरी अबाउट इट। यानी सच पूछा जाए तो ये भी हो सकता है कि भगवान खुद ही जान बच के तुम्हारा विश्वास दूर कर रहे हैं। हम चाहते हैं इजी लाइफ, कुछ भी हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में कठिनाई आई तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। अरे ऐसे कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं जारे सारा जीवन उन्होंने कष्ट ही पाया है, कष्ट के सिवा और कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में। तो फिर भगवान को क्यों लाते हो? संघर्ष करो, पुरुषार्थ करो, भगवान को प्रेम करेंगे। ये युधिष्ठिर की बात है ना, युधिष्ठिर रोज भगवान को प्रार्थना करते थे। तो द्रौपदी ने कहा या क्या कहा कि देखो तो तुम प्रार्थना करते हो, हमारे ऊपर तो इतनी विपत्ति आई उनके कारण। तो अरे रे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्यार करना, उनको प्यार करना अच्छा लगता है। वो है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अच्छा लगता है, वो मेरा कल्याण करें कल्याण नहीं करें उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा भगवान को श्रद्धा कर सको, प्यार कर सको, तो फिर श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? प्यार करो ना, डोंट वरी अबाउट क्या करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, उससे कोई संबंध नहीं। तब देखेंगे कि आपका सारा जीवन जो है वो आनंद से भर जाएगा। और जैसे एक श्लोक भी है चैतन्य महाप्रभु का कि आशीष्य मां पादरताम करोति वा दर्शनात् मर्महता करोति वा ममनाथ से वह, यानी वो क्या है कि वह मेरे को आलिंगन करें या मेरे को चरणों से मारें, अदर्शन होके और मुझे कष्ट देवे, तो भी प्राणनाथ प्रभु तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। तुम कितना भी कष्ट दो या सुख दो प्रभु, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। बस ये इसी प्रकार से करो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। यानी तुम्हारा फिर प्रश्न नहीं उठेगा कि भाई फेथ क्यों, फेथ से क्या लेना देना, मैं प्यार करती हूँ, मैं फेथ है बस, उससे संसार के कामों से कोई संबंध। ठीक है महाराज जी, यहाँ सवाल ये उठता है हाँ कि जब हमें तकलीफ होती है हम भगवान को याद करते हैं, यदि हाँ। हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो भी हम किसी प्रकार भगवान को याद करते हैं, पर हमारा जो हाँ। भगवान है वो संसार में ही घूमता रहता है, उसके परे हाँ। नहीं जाता है। ये सवाल हाँ। उठता है। तो फिर ये प्रश्न क्या, ये तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारे हमसे क्यों पूछते नहीं हो? तो इसको उससे परे कैसे आएंगे हम, उससे परे कैसे तो आएंगे? परे मत प्रॉब्लम है रहे, तो अब सॉल्यूशन तो मांगो। जानो तुम्हारा काम जो है, तुमने भगवान को संसार में बना लिया है, तुम्हारे ये सारे काम करने वाले हैं, एजेंट बन गए हैं। तो टिकट करना है तो भगवान को भेज दिया, और बीमार हो गए तो भगवान को बुला लिया। तो ये तुम्हारी मर्जी, हम क्या करेंगे? नहीं, पर इससे परे हमने कैसे तो ये बोल दिया ना कि अरे वो प्रभु हमारे को कष्ट देवे, सूली पर चढ़ा देवे, तो भी भगवान हमारे भगवान ही हैं, ये भाव होना चाहिए। तो भगवान से क्या लेना देना इसका, मैं प्यार करती हूँ इसलिए प्यार करता हूँ, बस खत्म हुई बात। और क्या करना है उसको? तुम इससे क्यों उन्होंने कहा ना कि भाई वो युधिष्ठिर ने जो कहा और अभी मैंने श्लोक कहा कि वो किसी तरह से मुझे कष्ट देवे, नरक में डाल दें, तो भी प्रभु मेरे तुम्हें मेरे भगवान। नहीं, हम तब ये भी नहीं तुम्हारा कहते कि तुम, महाराज जी हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे भगवान नहीं हो जब कष्ट देते हो, पर जब कष्ट देते हो तो भी हम तुम्हें याद करते हैं, लेकिन जब हाँ। खुशी होती है तो भी याद करते हैं। तो ये संसार की याददाश्त रहती है ना। सवाल ये है कि संसार से ऊपर की याद भगवान के साथ क्यों नहीं रहती, ये सवाल है। हम भगवान को नहीं तो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर निर्भर, तुम्ही ने इस भगवान को संसार के साथ जोड़ दिया है, भगवान थोड़ी जुड़े हैं, तुम्ही ने भगवान को जोड़ दिया। तुम जी। हटाओ भगवान को, संसार में से भगवान को निकाल लो, बस खत्म हुई बात।
जी ये बात है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, संसार के ऊपर थोड़ी। संसार से क्या लेना देना, तुमने जोड़ दिया है भगवान को संसार से। संसार और भगवान तो बिल्कुल अलग हैं। जहाँ भगवान संसार है वहां भगवान नहीं है, ये याद रखिए। सच्ची बात तो ये है, वो है ना, जो भगवान जिसको प्यार करना चाहते हैं, जिसपे कृपा करना चाहते हैं ना, उस भक्त के पहले उसका जो है सारी प्रॉपर्टी नष्ट कर देते हैं, जी उसके माँ बाप को मार डालते हैं, उसके बाद उसकी पत्नी को मार डालते हैं, उसके बाद उसका जो अच्छा सबसे प्रिय पुत्र है ना, उसको भी मार डालते हैं भगवान, जिस पर कृपा करना चाहते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति भी कि क्यों, कि भाई ये लोग इसका मन हटाएंगे, तब भगवान उसके पास है ही नहीं, क्या करेगा, कुछ नहीं है मेरा, तो मैं भगवान को प्यार करूं। जी तो ये भगवान जो है ना, वो बहुत निष्ठुर है। वो चाहते हैं कि तुम 100% मुझे प्यार करो, संसार से कुछ लेना देना नहीं है। इतना आसान नहीं है भगवान से प्यार करना बाबा। जी जी सब कुछ सर्वस्व का नाश होना चाहिए, सबका पूरा मन भगवान से हट जाना चाहिए, तब भगवान को प्यार। सारे संतों के जीवन में ये पाओगे, नथिंग बस। उनके जीवन में दुख के सिवा दुख नहीं। तुकाराम को ले लो, पांडवों को ले लो, दुखी दुख है। जी तो संसार से और भगवान से कोई लेना देना नहीं है बाबा, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। जी जी महाराज जी। महाराज ठीक फिर है? ये विश्वास हम दृढ़ हाँ, करना चाहिए। ये विश्वास दृढ़ करना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये भी एक सोच हो सकती है। देखो अच्छा बुरा की छोड़ दो, वो तो हम कहते हैं ना, सब कर्म के कारण हो रहा है। तो हमारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उसके कारण हो रहा होगा। अब ये तुम अच्छा कहो या बुरा करो, भगवान को मत लगाओ। जी और भगवान से प्रार्थना भी करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे कर्म में कर्म में प्रॉपर्टी नहीं है, पुराने कर्म के अनुसार तो तुम्हारे को ऐसे ही मिलना है। भगवान भी जो है ना कृपा करते हैं, वो आपकी जो पूर्व कर्म के कर्मों है उसके अनुसार कृपा करते हैं। यानी भगवान, यानी मैं यही बोल रहा हूँ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भगवान को उड़ा ही दिया। जरूरत क्या है भगवान? अगर प्यार करना है तो फिर करो, तो फिर और कुछ मत करो। प्रभु तुम जैसे हो वैसे मैं प्यार करूंगा। ठीक है? महाराज, हाँ हाँ। महाराज, ये क्वेश्चन इसलिए था, मतलब ये जनरल क्वेश्चन था, अपने पर्सनल नहीं था, कि यहाँ मेंशन किया हुआ है ना कि when they are in these depressing states, people tend to give up all spiritual practices instead of vigorously increasing it. If they have give up, they are gone spiritually. They cannot avoid a nasty fall from which they may not be able to recover for a long time. So giving up one's spiritual practice at such times is very bad and very dangerous. Cling it all the more. इसलिए हाँ, ये तो ठीक प्रश्न है, किया था। हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है। जनरली भगवान देखा है से ना। साधना तो करनी हाँ है, चाहे कुछ भी हो, साधना करना ही है। हाँ महाराज, जनरली देखा ना, जैसे घर में किसी का कुछ प्रॉब्लम आती है तो लोग ये कहना शुरू करते हैं अब तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा। तो उस कॉन्टेस्ट में था ये प्रश्न मेरा। हाँ। अब ऐसा आपका नहीं होना चाहिए इतना आपका ज्ञान पाकर ये तो समझ आ गई निवेदिता, है you have कि been able सुख to सुख join ना, जीवन के निवेदिता? हिस्से हैं। हाँ महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, पूछो। निवेदिता आ गया ना? हाँ पूछो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज, यहाँ मेंशन किया है इसलिए पूछ रही हूँ कि one finds great relief in repeating the holy name audibly to oneself. Japa is of great help during moods of depression. Page number 504. So my question is, Japa should be done loudly or silently, or as per the instructions of Guru? Because ऐसा है कि हाँ, एटर्नल कंपेनियन में भी ये मेंशन किया लाउडली लेने के लिए। ऐसा है, सब लोगों के बीच में हो तो लाउडली मत करो। नहीं, अकेले में, सब लोगों अकेले के में बीच में होगो तो लाउडली मत करो। नहीं, अकेले हो अकेले तो में। लाउडली कर सकते हो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर बाहर भी हो, अगर कुछ करना हो तो स्तोत्र पाठ करो, कोई भजन गाते रहो, तो उसका भी प्रभाव तो मन पर पड़ेगा ही, और हमारा मंत्र जो है वो एक्सपोज नहीं होगा।
तो जी। बाहर यदि रहो तो जोर से हल्का हल्का जोर से बाल का स्तोत्र पाठ या भजन कर लो, और अपने कमरे में हो तब थोड़ा सा ऑडिबली कर सकते हो, महाराज जोर से वैसे नहीं कर सकते। हाँ, मतलब जैसे प्रैक्टिस है इतने सालों से, तो वो मन ही मन करने की है, तो वही कंटिन्यू रखें या जोर से करनी चाहिए? नहीं नहीं, वही कंटिन्यू रखना है। ठीक है। केवल ये है कि मन को जब को मन ही मन सुनना है। जी। अगर तुम जब को मन ही मन सुनोगे ना तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मन का जब का अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है ओके। महाराज, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट। हाँ, what kind of good emotions are become obstacles as mentioned on page number 491? It is true that even noble and good emotions are also obstacles to the attainment of highest degree of spiritual experience, but that is a problem only for the advanced aspirant. तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? Question है, what kind of good emotions becomes obstacles? हाँ, आगे जैसे हाँ, आप ध्यान जब कर रहे हैं, आपके मन में अब मैंने मन में आया कि थोड़ा सेवा करना चाहिए, तो मन बहिर्मुखी तो हो गया। अब सेवा करोगे तो पैसा लोगों को दोगे या फिर मेडिकल करोगे, तो आप एक्टिविटी में बाहर चला गया मन। उस दिन आप देखेंगे कि आपका मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ। समझे ना, बहुत सारी हैं वो इमोशंस जो है, इमोशन से प्रेरित हो, खास करके इस प्रकार की बात है। और भी कहाँ लिखा मैंने कुछ तुम्हारा उसको जो है, ये दिस इज पर्टिकुलरली दिस वन। हाँ, यानी सेवा की पॉइंट है। या फिर हम कहें कि मैं आर्टिकल लिखूंगा, अरे भाई आर्टिकल लिखने से सुपीरियर तो है भगवान का नाम जप करो, मन एकाग्र लगा के करो। यानी हमारा दुर्भाग्य ये ऐसा है कि हम हमेशा इस तरह की चीजें नहीं कर सकते ना। हमेशा 10 घंटे बैठे रहेंगे मकान में, कमरे में, तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए ये एक्टिविटीज थोड़ी सी लगा रखते हैं, जिससे हमारा मन थोड़ा सा ऊपर भी न बना रहे, लेकिन फिर वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटी करिए, लेकिन इतनी मत करिए कि जो बाधा बन जाए। यानी यहाँ पर स्वामी शुभानंद जी ने वाराणसी सेवाश्रम शुरू किया था, ही वॉज द फाउंडर, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ब्रह्मानंद जी आए तो उन्होंने कहा कि उनको उन्होंने रिटायर कर दिया, जाओ आप तपस्या करो। क्यों? उनको लगा कि ये काम जो है उनके आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा बन गया। He is constantly thinking of work and not thinking of God. तो उसको उन्होंने वो कर दिया। अब हमारे मन में आए कि भाई हम भजन गाएंगे, स्तोत्र गाएंगे, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हारमोनियम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अब शुरू में ठीक है, लेकिन अब वो एक नशा बन गया तो फिर बाधा बन गया। इज दैट ओके? जी महाराज, एक्सेस नहीं करना किसी भी काम का, है ना। वो देख लेना है कि कैसा है ये, कम डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, अटक तो नहीं जाओगे, देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम। अच्छा सुधीर। प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। महाराज एक ही सवाल है, जैसे आपने कहा कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बार बार जितनी बार कोई सवाल उठता था तो अगले पैराग्राफ में उसका जवाब भी आ जाता था अपने आप ही, तो और फिर तो एक ही सवाल आखिरी में आया, वही मैं कर रहा हूँ महाराज जी। We all know about face the brute incident in Swamiji's life. Here too it has been mentioned, how do we face the internal brute? When past impressions are churned up during meditation, how do we boldly face up to them? जैसे स्वामी यतीश्वरानंद जी कहा है पेज 506 में, do we confront them or do we do प्रतिपक्ष भावनम here also? What are the techniques, Maharaj ji? No, it is not the, you must first of all know it. वो अपने को समझने लगते हैं संत, अरे हम तो इतने प्रोग्राम करते हैं, हमने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, हमने इतने आर्टिकल लिखे हैं, इतनी तपस्या की है, इतना सब करके हम अपने आप को संत समझने लग जाते हैं। और अचानक कोई बुरे विचार मन में आ गए, ध्यान करते करते अंदर सबकॉन्शियस में जो है वो निकल आया। नाउ व्हाट यू डू? उसको दबाने का प्रयत्न करे, छोड़ दो, नहीं, फेस इट, एक्सेप्ट इट,
फेस का मतलब है एक्सेप्ट, स्वीकार करो कि मुझ में ये बीमारी तकलीफ है, मुझ में ये ब्रूट है, उसको स्वीकार करो, साक्षी भाव से करो, जानो कि मुझ में है, मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता था, और अब उसको दूर करने का प्रयत्न करो। और दूर करने के प्रयत्न अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग हैं। अगर काम हो तो एक प्रकार से प्रॉब्लम दूर करेंगे, अगर क्रोध होवे, लोभ होवे, तो अलग अलग प्रकार के मीन्स के द्वारा उनको दूर किया जाएगा। उसको यहाँ डिस्कस अपन नहीं करते क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। पॉइंट इज कि उसको एक्सेप्ट करना है और जानना है कि ये एक ब्रूट है, ये एक बदमाश है जो मुझ में है, अब उसे मुझे फेस करना है, उसको दूर करना। ओके, इज दैट ओके? जय जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज। हो गया? अच्छा, इतु घोष जी महाराज। इतु पता है? हाँ चलो, हाँ इतु जी प्रणाम महाराज। हाँ जी मेरा पहला प्रश्न है, if you succeed in intensely visualizing your Ishta Devata, so is the visualization in dream or in imagination? अच्छा अक्सर आता है। it always visualization is done always in imagination. Okay. What is that to do with without? What is nothing to do with dreams? Okay. It is nothing to do with dreams. अभी sit and we visualize. वो बैठ के दक्षिणेश्वर में ठाकुर अपनी खटिया पे बैठे हुए हैं, वो उसके बाद में वो जा रहे हैं पंचवटी की तरफ जा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं. This is all visualization and this is done by imagination. It is only in imagination. Okay. यानी उसके बाद otherwise you will not feel that he is close to you. Okay. Second question, you feel that you have lost contact with the reality of the deity. So please explain this part. Just next line to that. No, तुम्हारा क्या है कि you don't feel intimacy with अपने इष्ट देवता. You feel that you have lost contact with the reality of the deity. हाँ, अच्छा. You feel that you have lost contact with the reality. इसका ऐसा मतलब है कि imagination, if the imagination is strong होगा, if you consider Thakur as real, then you will start feeling the contact, you know. और दूसरा है practice of presence of God. जी. यानी एक हैबिट बना लो, अपना काम करते हुए, खाना बनाते हुए ये सोचो कि ठाकुर मेरे पास खड़े हुए हैं, माँ मेरे पास खड़ी हुई हैं, अब कपड़ा झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, ये तो मैकेनिकल वर्क है ना. इन मैकेनिकल वर्क में और ठाकुर का स्मरण करना, प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड इज ए स्टैंडर्ड टेक्निक. वो करते रहने से क्या होगा कि ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट गेट फीलिंग हिज डिवाइन प्रेजेंस, यानी एक्टिव प्रेजेंस तुमको फील होने लग जाएगा. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर्स बाय व्हिच यू कैन फील दैट ठाकुर इज लिविंग एंड क्लोज टू यू. जी. और दूसरा ये है कि जप को जरा कॉन्सेंट्रेटेड करो तो भाई. जी. कॉन्सेंट्रेटेड जप विद थिंकिंग ऑफ द वर्ड, वो मन को, यानी जप के जो मीनिंग, जो साउंड है मेंटली, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अभी जो मैंने बताया. ओके जी. जी. और थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द ईगो कॉन्शियसनेस wanders without a fixed point, so ego wanders at which point when it is diminishing? So by this ego wanders at which point, or this is my question, when it is diminishing, when ego is diminishing, already started diminishing, then where it wanders? ना ईगो क्या है? देखो ऐसा है कि फॉल्स ईगो जो है ना जी, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो, स्वामी जतेश्वरानंद जी इस आर्टिकल में है ना,
Yes. In the article, he mentioned about false ego and true ego. So false ego is what we have identified with our mind. I यानी मैं body हूँ. I am very beautiful. I am intellectual. ये I है, ये false ego है. But जी. beyond that is the pure ego, that is Atma. So you have to repeatedly remove your idea of the false ego and put it in the real ego. Very difficult. It is not difficult, easy. So then ऐसा है कि this is if you can do, and then you have to have a relation, definite relation with the divine. यही है ना तुम्हारा question में something is there in your question? जी Any relation with divine? नहीं, क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन में ये है कि ईगो कहाँ घूमता है, किस पॉइंट पे घूमता है? ना ईगो कोई पॉइंट नहीं है. ईगो अच्छा. का कोई पॉइंट नहीं है. इट इज नॉट इन द हेड. इट इज समथिंग सेपरेट. एक्चुअली ईगो जो है वो समथिंग सेपरेट है. जी. So why do you worry about this point of the ego? जी. It is not that. ठीक है. अच्छा, मेरा चौथा प्रश्न महाराज जी. महाराज और किसी ने थाकशाला दास हुए. मैं भी सर्वेंट ऑफ गॉड. ठाकुर का दास बना के रखो. जी. ठीक है ना. ईगो को हमेशा ठाकुर का दास बना के रखें. जी. ये तो अहंकार है ना. पक्का अहंकार करने में ठाकुर का दास बना के रखो तो ठीक हो. जी. और मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, हम टेक्स्ट से थोड़ा पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका मीनिंग. by noticing the different elements in our sentiments and also the reactions of these sentiments on the mind and the centers of consciousness, we can very often find out their true quality and value. Feelings associated with the higher centers may get connected to lower thought planes and may even be debased into passions of the worst kind. So इसका मीनिंग ठीक से हमें समझ में नहीं आया. ऐसा है. देखो ये प्रश्न जो है ना जी, ये this is related to the centers, isn't it? Centers. जी. Centers of consciousness. और ये सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस और भी कुछ ने लोगों ने पूछा है. तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जरा केयरफुली इसको सुनिए. नाउ सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस वो चक्र कहते हैं. एक जो तांत्रिक दृष्टि से कहते हैं कि हमारे रीढ़ में, स्पाइनल कॉर्ड में चक्र हैं. 7 चक्र सर है ना. तो अपने क्या है वो मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध चक्र है, आद्याकृत्य है और उसके बाद सहस्रार चक्र है. तो ये 7 चक्र इस प्रकार के बने हुए हैं. व्हाट इज दैट मीन? वो क्या है? ये इसका एक ये तो है फिजिकल पार्ट, चक्र बना दिए ना. और मेडिकली भी कहते हैं वहां पे क्या है कि प्लेक्सस है, यानी नर्व्स के कनेक्शंस हैं. तो हम जानते हैं वहां पे हमारे मेडिकली 12 प्लेक्सस है. यानी मतलब यह है कि अब नीचे के प्लेक्सस को स्टिमुलेट करेंगे तो जो है वो आपको सेक्सुअल डिजायर हो जाएगी. पेट के आसपास का चक्र को स्टिमुलेट करेंगे तो आपके एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा. हार्ट के वाला चक्र करने स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट फास्ट हो जाएगा. तो ये है फिजिकल पार्ट ऑफ चक्र. ये फिजिकल पार्ट को. इसका साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है? ये जितने चक्र हैं उनसे हमारे यानी पेट का चक्र है वो स्टिमुलेट होगी तो हमको भूख लगती है. भूख लगते समय, खाना खाते समय एसिड होता है. हमारा मन जो है वो खाने की तरफ जाता है, हमारा मेज स्टमक पे जाता है. तब मन क्या हुआ कि वह मणिपुर चक्र जो है वो स्टिमुलेट हो गया, वो उपभाग हो गया. अब जब मेरा मन शांत हो गया, मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, तो हमारा जो अपने ये स्वादिष्ट अपने हृदय का जो चक्र है वो स्टिमुलेट हो गया. अगर अब मैं इंटेलेक्चुअल स्टडी करने लग जाता हूँ तो मेरे दिमाग के ऊपर का जो चक्र है यानी मेरा मन जो है स्ट्रांग हो गया.
तो वो चक्र जो है वो स्टिमुलेट हो गया। तो इन चक्रों के साइकोलॉजिकल प्रोपोर्शंस, ओके। अब जी स्वामी जी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि इन चक्रों के को आपको स्टिमुलेट करना है, वहां पर जाके आपको एस्टेब्लिश होना चाहिए। हमारा मन मानो नीचे के चक्रों पर नहीं जावे, जी यानी काम क्रोध के सेक्स के चक्र पे मन नहीं जावे, खाने पीने में ज्यादा चक्कर में हम नहीं पड़े रहें, हमेशा भगवत चिंतन करते रहें। ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है वो गले का चक्र या फिर ऊपर के चक्र की तरफ मन लगा रहेगा। भगवत का चिंतन कर लेंगे तो मन हृदय में रहेगा। तो हमें सारा काम हमारे जीवन का ऐसा करना चाहिए कि हमारा ऊपर के चक्र है स्टिमुलेट हो। ये हुआ जिसे कहते हैं ना कि अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी वो सेंटर्स को स्टिमुलेट करने का है। जी तो इसीलिए क्या किया है लोगों ने, अब मन जो है हमारा पेट में तो जाएगा ही, स्टिमुलेट होगा ही, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, खाने को हम प्रसाद ठाकुर को चढ़ा दिया। अब ठाकुर को चढ़ा के ले रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा मन जो है वो स्टिमुलेट होकर ऊपर चला गया, ठाकुर का चिंतन हो गया। खाना खाते हैं तो ये मणिपुर चक्र स्टिमुलेट होगा, उसके साथ में हमने चिंतन कर लिया ठाकुर का, तो उसको ऊपर ले जाने का। तात्पर्य यह है कि हमें सारी क्रियाओं को इस प्रकार करना कि ऊपर के चक्र जो हैं वो स्टिमुलेट होते रहे, बने रहे। इतना समझ लो तुम। जी अब तुम इसको आर्टिकल को अगर पढ़ोगे तो तुमको ठीक से चीज समझ में आ समझ जाएगी, में आएंगी। जी है ना। जी जी हो गया मेरा प्रश्न। प्रणाम महाराज। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने उसको डिटेल में किया है, थोड़ा पढ़ लेना फिर से उसको, अच्छी जी तरह समझ में आ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, वैसे दिलीप सब भाई, टॉपिक के बहुत अच्छा है, लेकिन जी। ये बात अच्छा है। दिलीप भाई, हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। तो मेरा पहला निवेदिता, सवाल- निवेदिता ने ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। हाँ महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, why हाँ। it is said that spiritual aspirant finds path full of obstacles and difficulties? Why he does not think positively that these difficulties are part of our achieving the highest goal of life, union with God? पेज नंबर 487 पे कहा है। नहीं नहीं, महाराज जी ऐसा है। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, one of the most distressing things that a spiritual aspirant discovers soon after turning a spiritual life is that this path is full of obstacles and difficulties, and to tread it means undergoing a good deal of suffering. अरे भाई, सिर में दर्द हुआ हाँ तो मैं सिर में दर्द को सिर में दर्द तो बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस मैं मन में भगवान में मन लगाना चाहता हूँ तो मेरा मन बड़ा चंचल हो गया, तो मैं भगवान के मैं मन को बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा कि मेरा मन चंचल हुआ? तो साधना करने में हमारा मन अभ्यास नहीं है, अभी हम डायरेक्टली शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस नहीं है। तो हमारा तो बैठने की तो इच्छा में प्रैक्टिस नहीं है, कमर में दर्द हो गई, आधे घंटे के बाद में ही बड़ा मन चंचल हो गया, सिर दर्द हो गया, तो इसको बोलना तो पड़ेगा कि हुआ सिर दर्द। अब आप कहते हैं कि भाई तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है, अरे भाई वो है, लेकिन वो हुई तो यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। साधना करने में शारीरिक और मानसिक समस्याएं बहुत आ जाती हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट यूज्ड टू, ये बात कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है, ये जितनी साधनाएं में बाधाएं आती है ना, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स। एक बच्चा जब चलने लगता है तो कितनी बार गिरता है, तो गिरना तो स्वभाव है। साधना करने में अगर आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पे तो फिसलेंगे, ये होगा ही, ये सब जानते हैं। तो वो क्या है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन्स है, वो महत्वपूर्ण है,
और उसको उसको इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी बात को हम बिल्कुल मानते हैं। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डिफिकल्टी अबाउट। महाराज अगर मान लो हाँ। ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब इसका साधना में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अरे यहाँ तक तो यतीश्वरानंद जी यहाँ तक कहा है उन्होंने। हाँ, ये भी कहा है। यतीश्वरानंद जी ने या किसी जगह कहा है कि अगर तुम हाँ। साधना कर रहे हो और ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे हैं तो हाँ, समझो कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। ये जो है जितनी तेज होना चाहिए, जितनी पावरफुल होना चाहिए, उतनी नहीं हो उतना रही है। नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा है। जी महाराज। हाँ। हो गया दिलीप भाई, आपका आंसर हुआ। महाराज हाँ। दिलीप भाई के यहाँ बिजली कट गई है, इसलिए उनको थोड़ा वक्त लगेगा, तो और किसी का क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा देखना, ठीक है फिर। देवाशीष। प्रणाम महाराज जी। हाँ। महाराज जी मैं वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा महाराज जी, मैंने तो ये कई बार पढ़ा है तो काफी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। तो एक बेसिक क्वेश्चन रह जाता है मेरा कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द ईस्ट, तो हमारा जो ऑब्स्टेकल्स जितना बताया गया है इसमें, ऑब्स्टेकल्स तो है ही, मन में है, बट अंदर में जो सोल है, दैट आत्मन, that the light of the Atman is percolating in the buddhi and then the mind, or it automatically purifies the mind, no? Because the Atman is all consciousness जो है, it is pure, and then that purity is overcoming the impurity of the mind, impurity of the buddhi, and impurity of the, I am the Atman, I am the soul. So why this, how can these obstacles defeat me? How can this obstacle defeat me in my way of sadhana? When I'm thinking that I am the Atman, I am the soul. क्यों? अच्छा सुनो, एक टॉर्च है, एक टॉर्च आपने जला दिया तो वो तो प्योर लाइट है। हाँ। अब उसके ऊपर आप कपड़े डालते जाइए, एक कपड़ा डाला, दूसरा कपड़ा डाला, तीसरा कपड़ा डाला, 5 कपड़े आपने डाल दिए, अब लाइट दिखेगी क्या? Right, yes, that's right, yes. बैट इससे बोलने से तो होगा नहीं, लाइट तब दिखेगी नहीं आपको। हाँ, तो फिर right. You know, our thought process are very strong. हाँ, thank you महाराज जी। और सेकंड क्वेश्चन था कि एक जो चित्त शुद्धि होता है, once you have done it, तो उसका बाद में कोई श्योरिटी नहीं है कि एक्सटर्नल से फिर मेरा मन जो है डर्टी हो जाए या मलिनता आ जाए, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा फिर तो शुद्धि होने का जो है। Yes, definitely it is continuous process. एक बार साफ किया, something like एक बार झाड़ू मारा, साफ किया, उसके बाद 2 बार आ गया, then third, because of my living in the society, living in the meeting people and all these things. So तो ये चित्त शुद्धि जो होता है, फिर अशुद्धि तो होता है कुछ देर बाद में भी, तो ये तो चलते रहेगा। इसका मतलब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे गोल पर। सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? ये तो रोज झाड़ू लगाना पड़ता है ना। अपने कमरे को रोज झाड़ू लगाते कि नहीं झाड़ू लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, लेकिन एक बार तो खत्म हो जाता है, फिर इसका मतलब हमें तो तुम रहो ना, तुम तो गंदे एटमॉस्फेयर में हो, सोसाइटी में रहोगे तो आपको उस काम क्रोध लोभ मोह सब आएगा। तो सोसाइटी छोड़ के भाग भी नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। अरे ठाकुर भाग गए थे, उसके बाद में भी जिस दिन बहुत सारे लोग आते थे ना, उस दिन ठाकुर भी डिप्रेस हो जाते थे कि आज कितने लोग आए हैं, मेरे को इतने समाधि भाव नहीं हो रहा है आज। अच्छा। तो फिर तो इसका मतलब निर्जन बस। पॉइंट इज एकांत में चले जाइए बीच में। अच्छा। ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। अच्छा। दिन भर में 1-2 घंटा एकांत में रहिए। हाँ। सप्ताह में एक संडे को आप गैप कर दीजिए, एकांत में चले जाइए। साधु संग कीजिए। महीने में 3-4 दिन चले जाइए, साल में 15 दिन एकांत में चले जाइए। बिना उसके नहीं होता। बात करने से बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। हो गया? हाँ ठीक है। बाकी सब मैंने पढ़ते कई बार पढ़ा हूँ मैंने, बाकी सब तो ओके रिलेटेड
दिलीप भाई ज्वाइन कर रहे हैं, दिलीप भाई आइए। ज्वाइन कर रहे हैं अभी, पता चल जाएगा कनेक्ट हो गए कि नहीं। और कोई ले? सतीश, संजय, सतीश को ले लेते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ भाई, तुम्हारा अभी का क्वेश्चन पहले पूछ लो और बाद में दोनों भी ले लेंगे, पहले वाले भी ले लेंगे। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। महाराज, पेज 500, during the soul's struggle, instinctive goodness passes through conscious goodness with struggles, and it becomes natural goodness without any conflict. इसका मीनिंग महाराज मुझे समझ में नहीं आया। क्या फिर से पढ़ो तो। During the soul's struggle, instinctive goodness passes through conscious goodness with struggles, and it becomes natural goodness without any conflict. Page 500 पे। During the soul's struggle, instinctive goodness क्या है? बहुत उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये 3 लेवल किए हैं उन्होंने गुडनेस के ना। जी जी महाराज, जी महाराज। गुडनेस के 3 लेवल किए हैं। हाँ जी। पहला है इंस्टिंक्टिव गुडनेस। जी जी हम अच्छे हैं, जन्म से ही थोड़ी अच्छी बात है, सच बोलते हैं, किसी को दे देते हैं, सेवा कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में साधना करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद में दया, ध्यान, श्रद्धा जो पहले थी, उसके बाद में स्ट्रगल होता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, वो आपका स्वभाव बन जाता है। हाँ, तो हमें यही करना है साधना के द्वारा। हमारी जितनी अच्छाइयाँ हैं, दया, ध्यान, श्रद्धा इत्यादि जो हैं, वो साधना करके उनको स्वाभाविक करना है। दिस इज वेरी क्लियर, बहुत ब्यूटीफुल है। जी महाराज, ठीक है, ओके। हमारे में जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको हमने कॉन्शियसली फॉलो करके उसको अपना एक स्वभाव बना लेना है। हाँ, यस, स्वभाव बनाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जी जी, उसको अपना नेचुरल साधना से पूरा करना नहीं है, उसका स्वभाव बनना ही है। इट हैज टू बी डन, दैट इज द गोल। हमारा लक्ष्य वही है। जी 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 महाराज। अब पिछले क्वेश्चन महाराज ले लें। हाँ, ले लो महाराज। पिछला मेरे पास आर्टिकल नहीं है, उस पे पेज 476 पर था, उसमें था। हेलो महाराज। हाँ, आप 3 लेवल बोल रहे थे ना, एक ही लेवल हुआ तो? पहला लेवल तो अनकॉन्शियस है, हम इंस्टिंक्टिव। जी, दूसरा लेवल है साधना का। और दूसरा कौन सा है? हेलो, 2 लेवल हुआ ना? दूसरा साधना। जी बताइए। साधना। तीसरा थर्ड लेवल हुआ। तीसरा उसमें एस्टेब्लिश हो गए। ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन विथ वीडियो एंड, उसके बाद एक आता है। तीसरा क्या है महाराज? तीसरा उसके गेट एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, यू गेट एस्टेब्लिश्ड इन इट। ठीक है, ओके। महाराज, पेज 476 पिछले आर्टिकल में था कि हमारे अंदर जो पैशन, डिजायर्स, इंप्रेशंस हैं, डिजायर्स, इंप्रेशन, टेंडेंसी जो लो लेवल पे है, उनको हायर प्लेन पर उसको मैनिफेस्ट करना और उनको प्यूरिफाई करना। महाराज, माय क्वेश्चन वाज how can these passion, desires, impression and tendencies manifested on a higher plane? How can these be purified? ऐसा है कि अगर आपको लोभ करना हो तो पैसे के लोभ के पड़ने, भक्ति के लोभ करो। काम करना है तो गोपियों ने क्या किया, भगवान के प्रति काम किया, भगवान को उन्होंने अपना पति बना लिया। क्रोध है तो क्रोध तो हमारी वासनाओं के प्रति क्रोध करो। ये these are the ways in which जो हमारी वासनाएं, इच्छाएं हैं, ये बुरी इम्प्रेशंस जो हैं, उनको हम ऊंचा हायर लेवल दे सकते हैं। जी महाराज, समझ। महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
we remind ourselves day and night that this world, please बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अरे आवाज क्या हो रहा है? पीछे क्या आवाज आ रहा है? म्यूट कर लीजिए। फिर से बोलो। जी महाराज। महाराज हम कहते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दिन रात हमें अपने आप को रिमाइंड करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन पर कोई असर नहीं होता उसका। We do not have any dharana of these mantras in our देखो mind. भाई ऐसा है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलने से तो होगा नहीं होता। और निर्जन में एकांत में रह के साधना करनी पड़ती है, बिना उसके कुछ नहीं होता। जी महाराज। निर्जन एकांत में और व्याकुलता के बिना कुछ नहीं होता। जी जी जी। बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जी जी। हमें एक्सपीरियंस भी है दुनिया का। जैसा अभी मैंने कहा ना कि एक दिन में कभी 3-4 घंटे एकांत में रहो, सप्ताह में एक दिन एकांत में रहो, महीने भर में 3-4 दिन, साल भर में 10-15 दिन एकांत में जाके साधना करो, उसके बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। जी जी महाराज। जी महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन। At the deathbed, Thakur told Swami ji that he was born as Rama and Krishna. ठाकुर ने कहा था कि मैं ही राम और मैं ही कृष्ण हुआ, जो हुआ वो इसी शरीर में है। My question is, at what level Thakur was Rama and Krishna in earlier incarnation, whether on mind level or spirit level? Whether it was on mind. नहीं, ऐसा है कि यानी एक शरीर है, एक बॉडी है। हाँ जी हाँ जी। तो एक राम की बॉडी के अंदर एक आए जी, उनको हमने राम बोल दिया। जी जी। और वही पावर जब कृष्ण की बॉडी में आए तो उनको उसको हमने कृष्ण बोल दिया। वही स्पिरिचुअल पावर या एंटिटी जो है वो रामकृष्ण की बॉडी में आई तो उसको हमने रामकृष्ण बोल दिया। वो गदाधर के रूप में आई, क्षुदिराम के पुत्र गदाधर, उसको हमने रामकृष्ण बोल दिया। It is on the at the spiritual level. फिजिकल बॉडी तीनों भिन्न है, फिजिकल बॉडी तीनों भिन्न है, लेकिन एक ही पावर, एक ही सत्ता जो है वो तीनों के अंदर है। It's the spiritual at the spiritual level जो है तीनों एक है। हाँ सत्ता, हाँ स्पिरिचुअलिटी बाकी भिन्न है। अब अगली जब आएंगे तो कोई फिजिकल दूसरा कुछ हो सकता है, एक पठान की बॉडी हो सकती है, उसके अंदर आएंगे, कुछ नहीं कह सकते। जी महाराज। माइंड लेवल पे नहीं कह सकते कि मेंटल लेवल पे। नहीं वो तो स्पिरिचुअल लेवल है, फिजिकल लेवल पे नहीं, स्पिरिट मेंटल लेवल पे नहीं। जी महाराज। समझ गए महाराज। प्रणाम महाराज। दिलीप भाई भाग गए। जी महाराज जी। क्या हुआ? लाइट कर रहे हो क्या आज? हाँ लाइट बंद हो गई थी। ओ अच्छा, दिमाग की। मैं समझा कि आपको डर लग रहा है। जी अरे महाराज डर तो इसलिए नहीं लगेगा, कल तक डर लगता था। लास्ट संडे को आपने एक सेंटेंस कहा कि अब मेरा जन्म बोर्डिया फैमिली में नहीं होगा, विवेकानंद फैमिली में होगा। तो हमने ये सोचा 25 लोगों का जन्म भी आपके साथ विवेकानंद फैमिली में होने वाला है, चाहे किसी भी रूप में, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। जी महाराज क्या बोला ये मेरे समझ में नहीं आया, फिर से सबका समझाओ तो। जन्म हो गई नहीं महाराज। नहीं मैंने ये कहा कि लास्ट संडे को आपने कहा था कि अब मेरा जन्म बोर्डिया फैमिली में नहीं होगा, विवेकानंद फैमिली में होगा, रामकृष्ण फैमिली में होगा। तो यानी हमने भी ये सोचा कि हमने भी आपका हाथ पकड़ा है, तो हम 25 लोगों का जन्म चाहे किसी भी रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो या जानवर के रूप में हो, पर होगा विवेकानंद फैमिली में। चाहे हम कुत्ते बने या बैल बने, पर आपके वहीं आके गुमा करेंगे रामकृष्ण आश्रम। भाई तुम ऐसा है ना कि वो सप्ताह में 1-1.5 घंटा विवेकानंद फैमिली में आते हो, बाकी सब वहाँ पे शाह फैमिली में रहते हो। ये काम करता है। जी महाराज। ऐसा नहीं होगा। चलो जी। हाँ मेरा पहला सवाल तो हो गया।
why it is said that spiritual aspirants finds paths full of obstacles and difficulties. Why he does not think positively that these difficulties are part of achieving the highest goal of life. तो मैंने बता दिया वही है कि भाई ऐसा है कि एक्चुअली फील तो होगा, हाँ यानी कमर में दर्द होगा तो कमर में दर्द होगा, जी, मन चिंतित होगा तो होगा, डिफिकल्टी होगी साधना में तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन वो जानता है कि भाई ये स्टेपिंग स्टोन है, ये तो होने ही वाले हैं, मुझे उससे नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा ही होने वाला है। यस राइट। और वो जब यहाँ तक बोल दिया ना कि अगर आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं नहीं आए तो समझना है कि कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है। जी यस जी महाराज, मेरा दूसरा सवाल है, इज द अनकॉन्शियस माइंड full of negativity or there is some corner in the unconscious mind for positivity? नहीं, ऐसा है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है जी। ऐसा है कि पतंजल योग सूत्र आप पढ़ो ना, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी नेगेटिव चीज बताई है। शुरू जब करते हैं ना, हाँ जी, चित्त वृत्ति निरोध, जी, चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। हाँ, जो चित्त वृत्ति क्या हो गई वो बताया। उसके बाद कहते हैं क्लेश की बात करते हैं, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हो गए जी। अच्छा, अब अहिंसा सत्य करने की कोशिश करोगे करने की, तो उसमें बाधाएं आ जाएंगे। असत्य है, हिंसा का भावना है जी, चोरी की भावना है, बिना पूछे लो चिल्ले लेना, और संग्रह की भावना है, तो ये बातें होंगी नहीं क्या? तो पतंजल योग सूत्र के अंदर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि की साधना भी है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भी है, अभ्यास, वैराग्य भी है, ईश्वर प्रणिधान भी है, भगवान में भक्ति भी है। ये सब का पॉजिटिव का बहुत सारा वर्णन है, लेकिन साथ ही साथ निगेटिव सारे दोष भी दिखाए गए हैं जी। ये दोनों आवश्यक हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो ठीक है, गुरु कहेगा चले जाओ, किए जाओ जी। लेकिन क्यों हो रहा है? अरे भाई ये तुम्हारी समस्या है, लोभ है तुम्हारे में, इसके कारण समस्या हो। यस। तो निगेटिव दूर करने के लिए भी बहुत बातें करने हैं, यानी साधना जो है उसमें 90% जो है वो निगेटिव दूर करने का ही है। जी। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना ही पड़ेगा। क्यों? उससे ये 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश दूर होंगे। तो ये क्लेश की बात तो निगेटिव हुई जी। मैं क्यों नहीं बाधा कर रहा हूँ? तुम्हारी अविद्या है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारे राग द्वेष है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कैसे करूं? तब करो, स्वाध्याय करो, भगवान पर शरणागत। तो दोनों चीजें कही गई है पतंजल योग सूत्र में ही, सभी जगह पे कही। जी जी महाराज, मेरा थर्ड सवाल है, हाउ कैन वी नो दैट वी हैव जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ द इनर लाइट? ये लिखा हुआ है कि वी हैव ए ग्लिम्स ऑफ इनर लाइट। तो ये हम कैसे जान सकते कि इनर लाइट की ग्लिम्स मिली है? जब करते महाराज, ये सेकंड पैराग्राफ में, इट सो हैपेंस दैट after several years of prolonged spiritual struggles we may get a spiritual experience. It is usually a temporary one, just a glimpse of the inner light. ये वास्तव में हमें मालूम कैसे पड़ता है कि ये ग्लिम्स ऑफ इनर लाइट है? कभी कभी एक धोखा भी हो सकता है जी। वो तो धोखा तो होता ही है ना। हाँ। एक आदमी ने आके कहा था कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया, एक संत को कहा जी। उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ बिल्कुल हो गया है, थोड़ा सा जरा सा एक को है, वो कुछ नहीं, यानी मुझे हुआ है, लेकिन वो 99% हुआ है, 1% का थोड़ा डाउट है, बाकी कुछ नहीं है, वो तो ठीक है। तो संत ने कहा मतलब ये है कि अभी आपको नहीं हुआ है। जब सच्ची ईश्वर दर्शन या ज्योति होगी ना, तो उसके बाद में प्रश्न नहीं उठेगा।
जी आप जो बोल रहे हैं ना कि ज्योति दर्शन है कि सत्य या मिथ्या है, झूठ है, अरे हाँ। जब ठीक ठीक होगा ना तब आप ब्रह्मेशानंद से पूछेंगे नहीं कि महाराज ये मेरे को सत्य हुआ कि मिथ्या हुआ। अच्छा यानी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में जो अनुभूतियां होती हैं, प्रगति हाँ। होती है ना, वो जी। इतनी क्लियर होती है यस कि उसमें फिर डाउट नहीं रहता। राइट जी महाराज जी ये बहुत बराबर। इंपॉर्टेंट बात है। जी अरे अच्छा, छोटी मोटी ज्योतियां तो होती रहती हैं, कई बार होता है। ज्योति क्या है? क्या है ज्योति? यानी कोई लाइट जैसी दिखती नहीं है, जी एक नॉलेज होता है, ज्ञान की प्रकाश होता है। अच्छा और कुछ लोगों को वास्तविक ज्योति भी होती है, अत्यंत प्रकाश हुआ जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश जैसा होता है। अच्छा तो भाई ये तो हमको हुआ नहीं, हम कह नहीं सकते। जिनको होता है उनको फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई डाउट नहीं उठता, बिल्कुल क्लियर। तो महाराज ये ओके? ज्ञान पुंज क्या कहते हैं? ज्ञान पुंज इसके मैं ये तो बोल रहा हूँ कि होवे तब ना, अब बोलने से क्या होगा? जी स्वामी जी ये आइसक्रीम जो है ना वो खाते हैं, बोलते हैं आइसक्रीम खाते हैं, ये क्या होता है? अरे भाई जब खाओगे तब पता चलेगा ना। बिना उसके थोड़ी होता है। Okay. Maharaj, my next question is, without a strict ethical life, how do some people succeed in spiritual life? ये लिखा हुआ है पेज नंबर 490 पर। हाँ, हाँ, without a strict ethical life, how can you reach to the success to a spiritual life? नहीं वो रहता नहीं है, वो थोड़ा सा आया और चला जाता है जी, यानी वो स्थायी नहीं रहता। ओके पातंजल योग सूत्र में शुरू में ही कह दिया है, जी अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध होता है, हाँ तीव्रता से करने से होता है। जी लगे किया किया किया, उसके बाद हुआ फिर चला गया, क्यों? हाँ दूसरे चैप्टर में लिखता है क्योंकि तुम्हारे अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य नहीं था, तप नहीं था, शौच नहीं था, स्वाध्याय नहीं था, ईश्वर प्रणिधान नहीं था, ये साधनाएं नहीं थी, नैतिक वैल्यूज नहीं थी, इसलिए आप ज्यादा टिक नहीं सकते। होता है वो चला जाता। 90% प्रॉब्लम यही है। अभी सब जगह जो है ना वो क्या है, वो कुंडलिनी जागरण हो रहा है ना, हाँ, सब जगह, जी जी सारी दुनिया में सब जगह कुंडलिनी जागरण हो रहा है ना। हाँ तो उसका नैतिकता, मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कुछ दिन रहता है चला जाता है, ओके बस। राइट मिलेंगे आपसे तो कहेंगे कि हाँ हमारा भी कुंडली जागरण हुआ है। Next question. For advanced aspirants, how do these studies, devotional music, social service, etc. can create problems? जो एडवांस्ड है ना, हाँ जो समाधि प्राप्त हो गई है, जी एक बार समाधि प्राप्त की, अब संघर्ष कर रहा है बार बार समाधि प्राप्त करने का, और आप आके कहिए कि स्वामी जी आपको सेवा करनी चाहिए, आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए, हाँ आप प्रवचन दीजिए, वीकली क्लास लीजिए, या हमारे जर्नल में आर्टिकल लिखिए, तो ये हाँ। बाधा हो गई कि नहीं बाधा हो गई? वो तो एडवांस्ड है, वो सब हो गया उसके लिए। जी अब तो वो समाधि के लेवल पे है और आप उसको नीचे खींच रहे हो। अच्छा ओके, right. हाँ, In continent, people will find their brains getting heated up easily. In those circumstances, what they should do? Yes. हाँ ये immediate heated हो जाए, दिमाग गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी अब प्रैक्टिस तो है नहीं, जबरदस्ती करना चाहते हो। जी तो क्या करें? दिन भर आप बिजी रहोगे, तो 7-6 दिन तक तो आप अपना काम करोगे, बिजनेस में जाओगे, आपके कोर्ट में जाओगे, और एक संडे के दिन बैठ के उन्होंने तुमने 4 घंटे लगा दिया जम के, तो आपका दिमाग गर्म होगा ही कि नहीं होगा? उसमें क्या करना है? उसको किताब बंद कर दो, उसको साधना एकदम कम कर दो, उसके बदले थोड़ा पढ़ाई कर लो, किताब पढ़ लो, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा सत्संग कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, कमरा साफ कर लो, कुछ आर्टिकल लिख लो,
या कुछ ट्रांसलेशन कर लो, इस करके ये तुम्हारा जो दिमाग हीटेड हो गया था उसको शांत। Yes. इज इट ओके? Right, Maharaj. Right, बिल्कुल. हाँ। Next. Unless महाराज despite. दिलीप जी एक मिनट। महाराज जी हाँ, एक please. आर्टिकल राइटिंग की बात करी ना महाराज जी, तो एक तो हो गया आर्टिकल राइटिंग रिगार्डिंग कोई ठाकुर का ही कुछ लेके, और दूसरा होता है कई दफे जो साइको थेरेपिस्ट बोलते हैं कि अगर आपके अंदर कोई बैगेजेस हैं आपके जिसके कारण आप डिप्रेस हो रहे हैं, उसको भी आप लिख डालिए। क्या इससे भी हमारे मन के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो सकते हैं? शुड वी प्रैक्टिस? हो सकते हैं, यानी ये उन लोगों की प्रैक्टिस है, उनकी टेक्निक है, लेकिन जी। आप उसी लेवल पे रहते हैं ना। लेकिन जब आप ठाकुर के बारे में आर्टिकल लिखेंगे जी जी, या वचनामृत के कुछ पोर्शंस हैं उसको आप कलेक्ट करेंगे, ऐसे कलेक्शन है। श्री रामकृष्ण ने ध्यान के बारे में क्या क्या कहा है, तो आपने एक लिस्ट बना ली। जी जी, समझे ना? श्री रामकृष्ण ने सेवा के बारे में क्या कहा है, तो उसको आप बैठ के वचनामृत से ले लिया। लेकिन साइकोथेरेपिस्ट इसमें कहते आपका माइंड जो है वो ठाकुर में लगा रहता है। जी जी जी, लेकिन आप जो करेंगे अपने मन के बारे में, वो उसमें ठीक है। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उससे हमारे मन में से निकल जावे चीज, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। बट उसके बदले हम ठाकुर का करने पे हमारे मन के अंदर ठाकुर की चिंतन डाल रहे हैं ना। जी जी, तो दिस बिकम्स ए बेटर टेक्निक। दैट्स ए बेटर टेक्निक, राइट? ओके जी महाराज जी। महाराज जी एक क्वेश्चन करो महाराज जी। हाँ महाराज जी, मेडिटेशन हमारा होता नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, तो इसके अगर हम लीला चिंतन करते हैं तो उसमें कोई ऑब्स्टेकल उतना आता नहीं है, तो करिए ना, बट इट इज ए प्रिलिमिनरी टू मेडिटेशन। तो उससे क्या फायदा एक ही मिलेगा ना, क्या बेनिफिट? सुनो, लीला चिंतन में आपने ठाकुर को दक्षिणेश्वर में सोचा। हाँ। वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। हाँ। फिर वो कमरे में निकले। हाँ। वो गए अपने दक्षिणेश्वर, अपने वो अपने पंचवटी में, वहाँ नृत्य किया, नरेंद्र से मिले, फिर आ रहे हैं, तो आपका मन अच्छा रह गया। लेकिन अब वो अल्टीमेटली बैठकर एक ठाकुर बाद में बनेंगे। उसके बाद कमरे में बैठेंगे, एक टेबल पे बैठ जाए, एक खाट पे बैठ जाएंगे। उसका ध्यान आपको करना है ना, वही तो मेन ध्यान है। तो लीला चिंतन वो जो है आपकी रेस्टलेसनेस को भले वो डाइग्रेस करते रहे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक टू द ठाकुर हिमसेल्फ। उसमें तो लगना पड़ेगा। अब हमारे महाप्रभु में वहां भी नहीं लगता, तो ठाकुर के दाढ़ी पे ध्यान किया, उसके उनके पर कपड़े पे ध्यान किया, उनके चेहरों पर ध्यान किया। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मन इतना रेस्टलेस है कि इधर उधर घुमाना पड़ता है। बट अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग टू वन ठाकुर, जो आपको इष्ट है, उनका चिंतन करना पड़ेगा, रूप ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद गुण ध्यान करने का पड़ेगा, स्वरूप ध्यान करना पड़ेगा। तो लीला चिंतन तो उसके सबसे पहले की प्रिलिमिनरी है। उसी में तो आधा घंटा निकल जाता है महाराज जी। नहीं, तो वही वो कहा है कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। और एक चीज पूछना था कि ऐसे कोई when I give a counter thought, then it gets nullified, that gets cuts. Like Patanjali somewhere probably has said that when the bad thought comes, give a counter thought. I am a devotee of the Lord. I am the mother, I am the son of the Holy Mother. So this kind of thought can negate that obstacles which is cropping up in the mind. Is it okay, or is it I am talking right? अब यदि प्रोवाइडेड, यदि है तो बार बार अगर समस्या होती है तो करो। प्रतिपक्ष भावनम जिसे कहते हैं ना। हाँ, विपक्ष काउंटर थॉट। वितर बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अहिंसा सोचने चाहते हो, हिंसा का भाव हुआ तो सोचो कि हिंसा करने में ये नुकसान होता है। हाँ, तो ये कट जाता है क्या? The obstacle goes away. अरे अगर आपको सुनो, आपको खाने की इच्छा हो रही है, बहुत सारी जलेबी, तो सोचिए कि जलेबी खाने से मेरा पेट खराब होगा। बार बार सोचिए तो क्या होगा? जरा भी से मन हटेगा कि नहीं हटेगा? समझे कि नहीं समझे? समझ गया मैं जी। वो वासना धीरे धीरे कम होता है।
अरे दिलीप भाई को होने दो, दिलीप भाई करने दो बात। हाँ महाराज, मेरा नेक्स्ट सवाल है, ये 4 लाइन पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ 497 पेज नंबर। Many aspirants get terrified thinking that spiritual life, if it brings about such serious unsettlement, must be very harmful and dangerous. No doubt, it can be so for the careless. Those who are unwilling to pay a high price need not try to spiritual life. Breaking through the prison walls of instincts and impure memories to the broad daylight of spiritual consciousness is an adventure reserved only for the strong people. ये तो बिल्कुल इन्होंने पत्थर मार दिया महाराज, सीधा पत्थर मारा। बिल्कुल 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 बाबा, ये जो है ना स्पिरिचुअल लाइफ, ये जूम मीटिंग की नहीं है। हाँ, पत्थर सीधा पत्थर मार। मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये जूम मीटिंग चल रही है 2 साल से, कुछ नहीं हुआ। हम जहाँ के हैं वहाँ के वही हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में इंटेंसिटी कहाँ आई? इंटेंसिटी आएगी तो पता चलेगा। हमारी सारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, इनको दूर करना पड़ेगा, उनको बाहर लाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, इंटरनल मेंटल, बिना उसके नहीं होता। ये तो हमारा जो है ना, ये एक क्या बोलना चाहिए, एक फैशन है हमारी। हम अपने एक संडे के दिन बैठ के हैं, कहते हैं जूम मीटिंग किया, हमने जूम मीटिंग किया। जहाँ के हैं वहाँ के वहीं रहे, कोई हमारी साधना नहीं बढ़ती, हमारी इच्छाएं वासनाएं दूर नहीं होती, वैसे के वैसे। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया दिलीप भाई? जी। Now next question. Even our love for God, devotion for God-men, and affection for fellow devotees are to a great extent based on the selfish consideration. How it can be selfish consideration? देखो, ये सेल्फिशनेस ऊंचे प्रकार की सेल्फिशनेस है। यानी मैं अपना चित्त शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं अपना शुद्ध करना चाहता हूँ, अपना चित्त करना चाहता हूँ, तो ये सेल्फिश हो गया ना। मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे भगवान का दर्शन होवे, तो ये मैं हो गया ना, एक प्रकार की सेल्फिशनेस हो गई। दैट इज द थिंग। तो इस प्रकार से पर इट इज हायर। हाँ हायर है, लेकिन उसे को एक प्रकार की सेल्फिशनेस है। यानी ये पॉजिटिव हुआ ना महाराज? यस 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 यस, पॉजिटिव सेल्फिशनेस, राइट। And my last question is, under what circumstances is the grace withdrawn temporarily once bestowed? ये महाराज क्या बात है? यानी once you bestowed again and then you take out. क्या हुआ है महाराज? मैं ये पढ़ रहा हूँ। क्या हुआ आपने? हाँ, ये महाराज कहीं आवाज आ रहा है, संजय जी डिस्टर्बेंस दे रहा है। अब ये आप जानो भाई, यहाँ तो कुछ नहीं, आपकी आवाज है। हाँ, संजय जी से कह रहा। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, क्लियर, नाउ क्लियर जी। महाराज ये लिखा है, लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिवाइन ग्रेस bestowed on us and try to attain something stable and permanent in our life, so that we may hold on that when we feel that the grace is withdrawn from it temporarily. ये क्या चीज है? Do not seek security and peace in the phenomenal world. It is always changing. If you seek happiness in it, you can't avoid getting unhappiness also. यानी संसार में जो फिनोमिनल वर्ल्ड यानी संसार जी, ये संसार में सुख मत खोजो। अगर संसार में सुख खोदोगे तो दुख आएगा, तुम उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जी। ये बात कह रहे हैं वो। उसमें संसार में वो नहीं करोगे, आप अपना भगवान में लगाने का प्रयत्न करो। उसमें चाहे संघर्ष भी होवे तो भी कोई बात नहीं।
नहीं, यहाँ पे महाराज इसके पहले की जो दो लाइन है ये तो समझ में ऊपर का नहीं आ रहा है. Let us make the best use of the divine grace bestowed on us and try to attain something stable and permanent in our life, so that we may hold on that when we feel that the grace is withdrawn from us temporarily. ये temporarily withdraw कैसे होता है महाराज? हाँ, पेज नंबर 502 विड्रॉ यानी ये है, हाँ, ये भगवान की कृपा से. मैंने आप दिलीप भाई से पूछा, दिलीप भाई तुम्हारा ध्यान कैसा हो रहा है? ये भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा है. हाँ, तो भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर, कुछ दिन ध्यान बड़ा अच्छा हुआ जी. उसके 15-20 दिन बाद मैंने पूछा, दिलीप भाई ध्यान कैसा हो रहा है? अरे भाई नहीं हो रहा है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा. तो भगवान की कृपा हुई थी, भगवान की कृपा भगवान ने ले ली. हाँ, तो वही मेरा सवाल है कि नहीं महाराज, मेरा सवाल ये है कि एक बार भगवान कृपा करने के बाद भगवान भी वापस ले लेते हैं. नहीं नहीं, वो आपने रखी नहीं ना, आपने कृपा, भगवान ने तो कृपा का पानी दिया, आपने अपने कप में भरा, और कप में तो उसके भगवान में कप में आपने छेद कर रखा था. ये संसार का प्रेम, वासनाएं, जी 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 जी, विषयों का प्रेम, भोग, अहंकार, ये सब बहुत सारे तो अपने जो कप भरा था, ड्रम बनाया था, उसमें बहुत सारे ये छेद थे. तो भगवान ने तो इतना कृपा दे दी, तुमने, आपकी कृपा सब जो है वो उस छेद से निकल गई. अब जैसे हो वैसे वैसे भगवान से करो, भगवान फिर दो फिर दो. भगवान करेंगे अरे भैया जो छेद तो बंद करो, मैं तो दे ही रहा हूँ, मेरे को क्या करना है देना है किसी बिना. ये 90% नहीं 99% काम हमारा है, हमारे जीवन में छेद बंद करने का. जी, भगवान की कृपा तो हो रही है, भगवान की कृपा हमारे हमेशा होती रही है, लेकिन हम अधिकारी नहीं है, हम रख नहीं पाते उसको. महाराज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी. महाराज जी 15 चैप्टर गीता में एक जगह है, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. तो उसमें उसका मतलब ये निकलता है कि वही देते हैं और वही ले लेते हैं. If you remember महाराज जी, तो हाँ, ये है कि नहीं, वो नहीं, भगवान तो कृपा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो भगवान तो माँ भी हैं, बाप भी हैं, सब ज्यादा भी हैं हमारे. हाँ, वो हमारी सब कृपा ही चाहते हैं उनका कल्याण ही हो गए. बंद हो गया. यस महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी? उसको पूरा करने दो, तुम्हारा खत्म ही नहीं होगा इनका फिर. जी, हाँ बस महाराज मेरे कंप्लीट हो गए. जी महाराज जी. अच्छा, अब कौन बचा? देवाशीष का हो गया. महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी? दूसरों को देख लेते हैं. चलो सपना. हाँ, प्रणाम महाराज. हाँ. महाराज फर्स्ट क्वेश्चन तो वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस लेके था, वो तो आपने बता दिया. फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जनरली वी आर एडवाइज्ड टू कंसंट्रेट आवर माइंड इन हार्ट सेंटर. महाराज आप म्यूट हो गए हैं. आप अनम्यूट कर लीजिए महाराज. हाँ बोलो सपना. हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन तो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस लेके था. जनरली वी आर एडवाइज्ड टू concentrate our mind in heart center, then why it is said here that the center should be discovered? What is the significance? वही तो मैंने कहा ना. हाँ, वही आपने बता दिया. हाँ, psychologically you will be able to understand. हाँ हाँ. And second and third questions are almost same, that how to see the divine in unwanted thoughts also. And even the page number 501, it is said also that our so-called selfless relationships and human feelings and sentiments are more or less based on the lower self. Even our love for God
devotion for godmen, and affection for fellow devotees are to a great extent based on selfish considerations. But at the root of all these, there is always a divine element which is mixed up with much of non-divine things. So how to see the divine in unwanted thoughts when we meditate or like these things? You see, that is very difficult. Frankly speaking, very difficult. Oh, इसलिए यही कहते हैं कि always make a differentiation between unwanted and wanted. ये शुरू में okay. काम क्रोध लोभ are unwanted Yes. and त्याग वैराग्य इत्यादि are wanted. Yes. Just hold on to that. It is at a much higher state level when you Acha. come to the state where you can see God also in the ugly things and dirty things. Oh, okay. It's much in the higher state होता है. Higher state. ठीक है. प्रणाम महाराज. Okay. That's it. अच्छा, अब हुआ कौन बचा? सतीश हो गया, सपना हो गया, निवेदिता एंड रीता. हाँ जी. पहला प्रश्न, how our weakness determines our spiritual progress, our joy and sorrow. ये अभी वो आर्टिकल में निकाल नहीं सकती, 502 पेज में है. नहीं, वो तो खैर मेरे पास भी पेज नहीं है. हाँ, ये नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम में ये करके डिटेल में आपको बताऊंगी. और दूसरा प्रश्न है, हाउ डू द पीपल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट डिफर इन देयर स्पिरिचुअल स्ट्रगल? How do the people of east and west differ in their spiritual struggle? स्पिरिचुअल स्ट्रगल ऐसा है कि हाँ, एक है महाराज, ये मैंने कि ईस्ट में अलग स्ट्रगल है और वेस्ट में है. वो है पेज नंबर 500. जस्ट ए मिनट, मैंने कहाँ लिखा है? एक मिनट. निवेदिता रीता, वो आर्टिकल तो अभी निवेदिता निकालना मुश्किल है. महाराज जी, मैं पढ़ लेता हूँ. मेरे पास भी हाँ, है. पढ़िए. Everyone in the east or in the west has to pass through struggles. In the east, the spiritual and ethical culture has been maintained in an unbroken way. This helps some aspirants, no doubt, but there are many who do not profit by it at all. So it is no use complaining that in the West spiritual life is very difficult. What is difficult is your own nature, and you have got to change it somewhere or other. हाँ, यही. इसी ऐसा है कि एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट है. एटमॉस्फेयर इन ईस्ट एंड वेस्ट इज वेरी डिफरेंट. जी. जैसे एटमॉस्फेयर की बात कहो, अभी काशी का एटमॉस्फेयर जो है ना, वो तो बम्बई के एटमॉस्फेयर से बहुत डिफरेंट है. ठीक है. यू नो, काशी का एटमॉस्फेयर इटसेल्फ बॉम्बे के एटमॉस्फेयर से बहुत डिफरेंट है. जी इसी प्रकार से वेस्ट का एटमॉस्फेयर और ईस्ट का एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इवन मैं तो रह के आया हूँ, मैं तो रोम भी गया था, वहाँ पे एससीसी भी गया था, लेकिन यहाँ का बनारस का एटमॉस्फेयर उसकी तुलना में वो लोग कुछ भी नहीं. तो ये एक डिफरेंस दोनों का है. जी. और तुमने जो बोला ना, वीक पॉइंट का पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? पहला जो है ये वीकनेस, ये बता रही मैं. पहला जो हाउ आवर वीकनेस डिटरमिन्स आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आवर जॉय एंड सॉरो. वो तो यतीश्वरन जी बोला तो है ना, वो तो बोला है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन इज जज्ड बाय द वीकेस्ट लिंक. हाँ, ये से दैट वन. वेरी इंपॉर्टेंट. सुनो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डोंट अंडरएस्टिमेट योर वीकनेसेस. हमने 50 साल तक साधना की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल जीत गए हैं. अच्छा. हमारे एक स्वरूपानंद जी बोलते थे कि मैं 50 साल साधु हुआ हूँ, मैं 40 दिन में अकेला नहीं रहूंगा, पता नहीं कब मेरे गड़बड़ हो जाए.
तो वीकनेस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी वीकनेस को जानना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। उसी Just as प्रकार वो strength- सॉरोज एंड ये भी है महाराज, सॉरोज, जॉय एंड सॉरोज हाँ, उसी प्रकार से होगा। हेलो, मैं पढ़ दूं आपके लिए? हाँ जी, नहीं, जॉय और सारो क्या? उसी के नीचे ही है महाराज। महाराज ये मेंशन किया आर्टिकल में, जस्ट एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन डिपेंड्स ऑन इट्स, just as the strength of a chain depends on its weakest link, so our weaknesses determines our spiritual progress, our joys and sorrows. We should not be too proud or overconfident about our strong qualities. Many of our difficulties come from this source. वही तो कहा। मतलब समत्व भाव में रहना है, रहता है। हाँ, समझ में रहना है, और जॉय सॉरोस तो दोनों एक साथ लेना पड़ेगा, और डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट, यस करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपने बता दिया, हाउ गुड इमोशंस कैन आल्सो बी हिंडर, आपने अभी बताया। हाँ जी, प्रणाम महाराज। रीता तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन। Yes, Swamiji, my first question was on center of consciousness. It has been answered. Okay. My second question is, what is meant by following a combination of the negative and positive methods of spiritual practice? ये बता दिए। वो वहाँ पे लिखा है, same place there. Just before read it. Just before that you read it. Yes, Swamiji. Then the third question is how to deny the body of all it is connected with. How to assert the self intensely and vigorously with one's whole being. Now, this also you read that. Deny body, etc. Read the same. You read that portion. Read that portion. It is very clear. Yes, that portion, Swamiji, only. After that, it is the next paragraph says that you have to change your whole life. We must undo what we have done. That is, this portion actually is giving me trouble in understanding. Yeah, unfortunately, the book was not with me. On the mobile phone, it is there, so I cannot see. Then I deny the body. What is they said about deny body? That is what is the meaning of denying the body? You have to repeatedly think that I am not the body. Oh, repeatedly you have to think that I am not the body, I am the Atman. That is the denial of the body. It's very not easy. No, it is not at all easy. We are so much concentrated in the body. Day and night we are thinking only of the body. And day and night you have to deny the body. That is the thing. और वो नेगेटिव मेथड के है, उसके साथ में वहाँ ऑलरेडी रिटन है स्वामी जी ने. If you read in that passage, it is written some negative things also are written and positive things are also written. Please read it because it is important. I want others also to listen to it. Negative and positive. Before that, he says, sometimes owing to our old habits, the center of our consciousness goes down after remaining up for a while, and then all kinds of thoughts peculiar to that center begin to bubble up. So you must prepare yourself to face such situations. Always think of yourself as a soul, a self-luminous entity,
separate from body and mind. After your usual meditation, have some set readings from the Upanishads or from the monastic stanzas of Shankaracharya. While repeating these passages about the real nature of yourself, try to drive deep into your mind. Follow a combination of negative and positive methods of spiritual practice. Deny the body and all that is connected with it, but assert the self intensely, vigorously with your whole being. For many beginners, this brings about a headache. But then there are so many other things which bring us headaches. Why not have this You see, that is what I said. Huh. So denying the body is a Yes. negative thing. Huh. And asserting the Atman is the positive. Positive one. Yes, This yes, is the yes. positive and negative thing. हमारे Yes, जीवन yes, में yes. दोनों ही होना है कि बुराइयों को तो त्यागना पड़ेगा, ये नेगेटिव टेक्निक हुआ, और अच्छाइयों को स्वीकार करना है, ये पॉजिटिव टेक्निक हुई। एक चिंतन की दृष्टि से ये देह में नहीं हूँ, ये नेगेटिव हुआ, मैं आत्मा हूँ, ये पॉजिटिव। Yes. तो जो आदर्श लेने हैं वो भी, और जो हमारा लक्ष्य है उसको भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हमारी साथ में होगी। ये बात ठीक है महाराज आप, और कोई प्रश्न? थैंक यू महाराज आप बोलते हैं ना वो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी रोज पढ़ने का है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे डेली को चैंटिंग मैं करने देखा था, तो रोज पढ़ता हूँ उसको। जी। तो आई एम निवेदिता, यू आर एबल टू जॉइन, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हाँ, थैंक यू महाराज, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। हाँ, शांति मत। सहनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम।